Viewers, we are now moving on to breaking news that we're picking up from the state of Haryana. There's a chilling case, a murder case that's come to light. Now, chilling disclosure in the tennis player's murder case. Upset over tennis academy, the father killed the daughter. Father's chilling confession after killing his beti. Deepak told the police that he had explained to his daughter Radhika many times that she should close the academy, but Radhika did not listen. According to Deepak, people used to taunt him for eating his daughter's earnings, eating off rather from his daughter's earning, and Radhika had opened the tennis academy due to a shoulder injury during a tennis match. Upset by this, Deepak Yadav in fact shot his tennis player daughter Radhika Yadav 3 times. This is murky. And it's getting murkier at this given point as we are getting to know more and more details. Remember, we had spoken to our colleague before this who told us about this injury, a shoulder injury that Radhika Yadav had suffered, because of which she couldn't continue playing the sport, but at the same time, she had opened a tennis academy where she used to teach. And then it was found out that her father ended up murdering her. Initial details were in fact coming to light over the fact that the father was upset with her making Instagram reels, but there was also another angle to it where we had seen that the Instagram account itself had been deleted from the very platform. So then there were questions with regards to why did the father continue and end up committing such a horrible crime, committing such a brutal crime against his own daughter. Now, there were questions being posed to relatives, friends to the family who were all close to the very family, to the very daughter, to the very father. The brother has also been interrogated in this very matter. But now we are learning that, and after extensive questioning that's continued, after extensive interrogation sessions with the father, who's also the culprit at this given point, it's been learned at this given point that the father has confessed that he was upset not with the Instagram reels alone, but more importantly with the academy that was started by Radhika. Now we have Himanshu Mishra joining us from Gurugram. Himanshu, हमें अभी पता चल रहा है उनके कन्फेशन से, जो कल्प्रिट है राधिका के पिताजी हैं, उनके कन्फेशन से कि वो जो एकेडमी थे, जो एकेडमी राधिका ने एस्टैब्लिश की थी, उससे वो नाराज़ थे। उनको लोग ताने मारते थे कि अपने बेटी के कमाए हुए पैसे पर वो जी रहे हैं और इस वजह से उन्होंने अपने बेटी की हत्या कर दी। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग रेवलेशंस है जो सामने आ रही है और हमें इस बारे में और जांच से क्या-क्या पता चल रही है, ये प्लीज़ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो पता लगा, जो अभी हमने बात की, क्योंकि यहाँ पर घर है, ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर घर है और सामने चंद कदमों की दूरी पर, ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ ग्राउंड है जहाँ पर अक्सर वो खेलने भी जाया करती थी। टेनिस कोर्ट है यहाँ पर और यहाँ पर वो खूब प्रैक्टिस भी किया करती थी और लोगों को यहाँ पर कभी कभी वो सिखाया भी करती थी। टेनिस एकेडमी खोलने के पहले यहाँ पर उसका लगभग रोज आना जाना होता था और यहाँ पर काम करने वाले एक शख्स ने हमें बताया कि उसके पिता भी आते थे और दोनों लोगों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दीपक यादव, राधिका यादव साथ में खेला भी करते थे और जब कभी राधिका जब टेनिस खेलती थी चोट लगने से पहले और वो कोई कंपटीशन जब वो जीतती थी तो वो बेहद खुश होते थे। जो ट्रॉफीज वो घर में जीत के लाती थी, उस ट्रॉफीज को वो एकदम सामने घर के रखते थे, लोगों को बताते थे कि ये देखो मेरी बेटी ने जीता है। तो आखिर इतनी अच्छी जब बॉन्डिंग थी एक पिता और उनकी बेटी के बीच, तो ऐसा क्या हुआ? और यही सवाल है कि पुलिस भी इस सवाल का जवाब तलाश रही है, इसलिए हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। क्योंकि एक तो ये जो आप कह सकते कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि रील जो बनाती थी, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीटेड है अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक, तो जो रील वगैरह बनाती थी उससे काफी नाराज रहते थे उसके पिता। दो तो फौरी वजह जो सामने आ रही हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और है जिसकी वजह से उसके पिता और बेटी में इस कदर स्थिति बन गई कि अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से घर में किचन में जब वो खाना बना रही थी उनकी बेटी, तो उसको
3 गोलियां उन्होंने मार दी और पुलिस हर पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रही है। मौके से जितने संभव थे, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम, सबको बुलाया गया। मौके से सारे एविडेंसेस उठाए गए। जो .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल थी वो पुलिस ने सीज कर ली है, उसको जांच के लिए भेज दिया है। जो खाली खोखे मिले हैं, क्योंकि जब फायरिंग की थी वो पुलिस ने सीज कर लिया है। जो अंदर पिस्टल की गोलियां थी वो पुलिस ने सीज कर ली हैं। साथ ही साथ जो लोग फ्लैट के अंदर और मकान के अंदर थे उन सब के पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो पुलिस स्टेप बाय स्टेप और बेहद अच्छे से इस पूरे केस की जांच को आगे बढ़ा रही है, ताकि कोई पहलू, कोई छूट न जाए और कोई चीज ऐसी न रह जाए कि जो सामने ना आए। इसके लिए तमाम लोग जो राधिका से जुड़े थे उन सबके भी स्टेटमेंट आने वाले वक्त में पुलिस रिकॉर्ड करेगी। जी, अगर हम और एक बात पर अभी ध्यान दें तो ये जो हत्या हुई है ये काफी बेरहमी से हत्या हुई है। आप पहले कह रहे थे कि राधिका के भाई भी उस घर में रहते हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनका क्या कहना है? क्या उनको इस पूरे मामले के बारे में, या फिर कहे तो उनके पिताजी के भरास के बारे में, उनके इस नाराज़गी के बारे में, स्पेशली जो एकेडमी से जुड़ी हुई नाराज़गी थी, इसके बारे में या फिर इस डिटेल से वो वाकिफ़ थे पहले? क्या ऐसी कोई सूचना मिली है आपको उनसे बात करते हुए? अभी देखिए अभी जो जानकारी मिली है उन्हीं के कंप्लेन पे, कुलदीप की कंप्लेन पर ही एफआईआर दर्ज की गई है और वही उनके बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जो अभी तक बयान हुआ है उनका, उनमें इन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो अभी तक स्टेटमेंट है जो दीपक यादव का, दीपक यादव की पत्नी का, कुलदीप यादव का जो भाई हैं, तो उन्होंने, कुलदीप यादव ने लिखा है कि जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो तुरंत भाग के ऊपर गए और ऊपर का पूरा मंजर उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो पिस्टल कहाँ पड़ी हुई थी, जिसको देखते ही वो पहचान गए कि ये उनके भाई की है। राधिका खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो फौरन उन्होंने, जो उनका पहला काम था कि राधिका को उन्होंने तुरंत पास के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां पे डेड डिक्लेयर कर दिया। 10:30 बजे गुड़गांव पुलिस को इस वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और तुरंत दूसरी टीम घर पे पहुंचती है और दोनों जगहों से सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। तो कुलदीप का जो स्टेटमेंट है अभी, वो जो उन्होंने वारदात के वक्त देखा, जब उन्होंने आवाज सुनी, गन शॉट जब उन्होंने सुना, तो उसके बाद जो कुछ उन्होंने देखा वो पूरा सर्कमस्टेंशियल जो सारी चीजें वो उन्होंने लिखी। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो किस कंडीशन में थी राधिका, कब वो ले गए, डॉक्टर्स ने क्या बोला, घर में लोग क्या कह रहे थे, वो सारी चीजें, ये चीजें अभी उतनी महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन जब केस आगे बढ़ता है तो ये चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि सबसे पहले जो स्पॉट पे पहुंचता है, सबसे पहली चीज जो आप जो देखते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है जब केस की जांच, जब केस कोर्ट में पहुंचता है। तो इसलिए ये सारी चीजें बेहद अहम है। पुलिस ने इन सभी चीजों को, इन बयानों के आधार पर, मौका वारदात की जो पुलिस ने फोटोग्राफी की है, जो फोटोज पुलिस ने क्लिक किए हैं और जो स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, और अब जब इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट हो रिवॉल्वर की, जो गोली राधिका के शरीर से मिलेगी, उसको जो पिस्टल के अंदर जो गोली है जो चलने से रह गई है उस गोली से मैच कराया जाएगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें बाद में इंपॉर्टेंट है। जांच अभी भी जारी है। दिस इज द लेटेस्ट दैट हिमांशु brings us at this given point in this very case. As the probe continues, there are chilling details further that are coming in at this given point, and it is coming to light, only making this very murder case murkier. With that, viewers, as we speak of this very murder case, let's also take you through all the details that we have received so far on this chilling particular murder case that we are speaking of. A state-level tennis player, Radhika Yadav, has been shot dead by her own father in Gurugram. And the reason initially that was coming to fore was she used to make Instagram reels. The victim was shot dead at around 10 a.m. in her house in Gurugram. The police have arrested the man. According to the police sources, Radhika wanted to become an influencer, but her father, Deepak Yadav, was upset about his daughter making reels and posting them on Instagram. Now, sources have also revealed that Deepak Yadav was upset about his daughter running a tennis academy. In agitation, he has fired 5 bullets at his daughter, 3 of which
hit her, claiming her life. 25 years old Radhika was a renowned state-level tennis player who had won several competitions. She also competed in various national and international tournaments before she came down with a major shoulder injury. अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात गुरुवार सुबह 10:30 बजे के आसपास की है। हम लोग ठीक घर के बाहर मौजूद हैं। पहली मंजिल पे जो आप घर देख रहे हैं, यहीं पर बताया जा रहा है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अभी वजह साफ नहीं है। वजह को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिता नाराज थे क्योंकि बेटी रील बनाती थी। कभी ये भी कहा जा रहा है कि पिता जो बेटी ने अपना टेनिस एकेडमी खोल रखा था, उससे भी पिता नाराज थे। तो असल वजह क्या है, ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, न सिर्फ पिता से बल्कि घर में वो उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी से पूछताछ कर रही है। एफआईआर दर्ज की गई है जो दीपक यादव हैं उनके भाई की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो नीचे से जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी भतीजी की बॉडी पड़ी हुई है। साथ ही साथ एक रिवॉल्वर भी था जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था, .32 बोर का, उनके भाई दीपक का। जिसके बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। उन्होंने रिवॉल्वर पुलिस ने सीज कर लिया, उस पे से फिंगरप्रिंट लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और लगातार दीपक यादव से पूछताछ की जा रही है। दीपक यादव के अलावा दीपक यादव की पत्नी जो कि उस वक्त घर में मौजूद थी, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। दीपक यादव के भाई कुलदीप यादव का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल कत्ल की असल वजह है क्या। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है।